Beta, the recording is on once again. So let's continue. Now tell me, you want to go ahead with question number 7? Yes, sir. Okay, all right. Let's go to the whiteboard and let us have the question there. It's there on the WhatsApp group, na? Yes, sir. Okay, beta. We have the question on the screen now. So it says to a stationary observer, if the amplitude of sun was east 10 degrees north. So let's show this information in the rational horizon. So east 10 degrees north, that means the sun must be somewhere here. Let's call this as X. And if I join ZX, this angle is the amplitude, which is 10 degrees. And at the time of meridian passage, its true altitude south of the observer was 80 degrees. So south of the observer means the line Z to S. This represents the south direction, 180 direction, and the altitude is 80 degrees. So on line ZS with a altitude of 80 degrees, point S is at the horizon, which is 0 degree altitude. Point Z is the zenith, which is 90 degree altitude. So we want 80 degrees altitude. So from point S, I go 80 degrees somewhere here. This is where the sun should pass. So the sun was at position X in the morning at the time of rising. At the time of Marpas, it was at this particular position. You can call it X dash if you want. And now actually we can draw the declination circle of the sun also. The sun declination circle would be something like this. That's the only way it can pass from X and X dash. Yes, So sir. up to here, okay, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now once I have the declination circle, I can mark the equinoctial also. I know equinoctial always passes from east and west point, and all the declination circles are parallel to the equinoctial. So passing from east-west point parallel to this declination circle, if I draw, this will be the equinoctial. Correct, beta? This is also okay? Yes, sir. So this point where it crosses the meridian is the Q point. We have the Q point here. If the equinoctial is WQE, the pole has to be 90 degree away from the equinoctial. The pole has to be somewhere here. So let's mark it as P. Okay, beta? Yes, sir. Okay. So now beta, let's come back to this diagram now. This distance from Z to X dash is also 10 degrees.
The altitude was 80, so the zenith distance, which is zx, has to be 10, right? Yes, sir. Okay. Now we have come to the whiteboard. Now in this diagram, beta, one you see the amplitude is 10 degrees. Now what is the formula for amplitude? Sine amplitude equal to secant declination into cos lat. So sine of 10 is equal to Sine decant sine of declination. and secant of latitude. Okay, or you can write here as Cos cos, lat. one and the same thing. This is the formula. Now beta, if you look carefully in this diagram, what is z to q? This, what is z to q? Latitude of the observer, sir. Very good. This is the latitude. So let me mark it as L. And can you also tell me what is q2x dash, this one? Declination of the sun, sir. Very good. This is the declination of the body. So you can see here, latitude is equal to declination plus 10. कैसे हुई सर ये declination कैसे हुई सर? Okay. Beta, we have the equinoctial as WQE. हाँ जी सर. We have the declination circle of the body, that is x, x dash going up to here. Yes, sir. Now, how much north or south of the equinoctial the declination circle is, that represents the declination of the body. अच्छा, ठीक है सर. Right? How much north or south of the equinoctial, the Q point you are, that is basically the declination of the body. Yes, sir. Right? Yes. हाँ, So okay. we now know latitude is equal to declination plus 10. Correct, beta? सर इसमें दूसरा केस भी तो हो सकता था, जैसे डेक्लिनेशन जो दिया हुआ है वो साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर बोला है, तो क्यू के नीचे भी तो हो सकता था. अगर मैं Q के नीचे डेक्लिनेशन लगाऊंगा बेटा, then the amplitude can never be north. ओके. एम्पलीट्यूड नॉर्थ तभी हो सकता है अगर डेक्लिनेशन नॉर्थ हो. यू रिमेंबर जब हमने एम्पलीट्यूड की नेमिंग की थी, आई टोल्ड यू हाउ इज द इनिशियल नॉर्थ साउथ नेम्ड. सर इट्स ऑन द बेसिस में, जैसे एम्पलीट्यूड का तो ए और बी के ऊपर होता है, जैसे लैट है वो डायरेक्टली अपोजिट टू लैट के नाम हो जाता है, बी उसके बी सेम एज डेक हो जाता है, उन दोनों का डिफरेंस लेके जो नाम आएगा वो आपका एम्पलीट्यूड के नाम पे आ जाएगा. No problem. You forget about it. What you do is pay attention here. Now you are saying कि हमारे पास ये बॉडी है जिसका राइजिंग हुआ यहाँ पे, करेक्ट? यस सर. 10 degrees north. This point is fixed, right? And it is crossing the meridian here, right? It is crossing the meridian at this point. This is also fixed. Let me call it x dash. ये दोनों point fixed है ना बेटा? हाँ सर, पर एक्स डैश नीचे हो सकता है ना जेड एक्स पे थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा, मतलब वो तो 10 डिग्री फिक्स है ऊपर. राइट. ये जो जेड एक्स है, ये जो जेड एक्स वन है, ये आपका इक्विनोशियल इन दोनों के बीच में भी तो आ सकता है. मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो इक्विनोशियल के नीचे भी तो एक्स वन आ सकता है. ओके बेटा, मैं समझ गया तुम्हारी बात. अभी बनाते हैं उसको. सो पहले तो डेक्लिनेशन सर्कल बना दें. डेक्लिनेशन सर्कल तो ऐसे ही बनेगा बेटा. हाँ. करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. नहीं सर, वो दोनों की पोजीशन दी हुई है. हाँ. अब हम चाहते हैं कि हमारी इक्विनॉक्शियल इन दोनों के बीच में आ जाए. सो लेट्स मार्क द क्यू पॉइंट हियर. ठीक है बेटा? यस सर. अब equinoctial and the declination circles have to be parallel to each other. यस सर. All the declination circles are parallel to the equinoctial. So अगर मैं equinoctial बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगी. So sir, this is हाँ okay. So only Right. this is on this basis we can justify that equinoctial will be coming down. अब ये जो equinoctial बनी है बेटा, this is not possible
because That's I know equinoctial, east west से पास होता है right, equinoctial. But तो on this basis only we can we will say that equinoctial this body is above the equinoctial. that's right beta, that's Okay. right. Okay. Okay, sir. Okay, so we go back to our original diagram now. So we know latitude is equal to declination plus 10. So let us write it here. Latitude is equal to declination plus 10. Okay. अब काम आसान है बेटा. अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, let's replace one of the things. So it has sine of 10 degrees on this side. एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उन्होंने लैटिट्यूड पूछा है बेटा हमें क्वेश्चन में. Yes, sir. यस सर. ओके, वेरी गुड. सो व्हाट आई डू इज, मैं ऊपर डेक्लिनेशन की जगह पे आई राइट लैटिट्यूड -10 अपॉन कॉस ऑफ एल. सो इज दिस ओके बेटा? ओके सर. Yes, sir. मैंने डेक्लिनेशन की जगह पे L -10 लिख दिया. यू कैन सी डेक्लिनेशन इज इक्वल टू L -10 हियर, राइट. अब ये जो टर्म है बेटा, इट इज़ साइन ऑफ A - B. ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या होता है. मैंने आपके ग्रुप पे 4 फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के शेयर किए हैं. सो साइन A - B इज इक्वल टू साइन A cos B माइनस cos A sin B. ओके, सो लेट्स राइट इट हियर. Let me make the pen a little. So this will get converted to sine of A into cos of B minus cos of A into sine of B. And this is whole divided by cos of latitude. Right beta? Now this will convert to the first term, sin lat cos 10 upon cos lat. Sin lat upon cos lat will become tangent lat. So let us write it as tangent latitude into cos of 10 माइनस, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा. cos lat will get cancelled out, so you will only have sin 10 here. Sine of 10 is equal to sine of 10 on this side. So अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है बेटा. इसमें एक ही वेरिएबल है, अननोन है, that is latitude. Just put the other values and you will know what latitude is. सर हाँ, ये जो बोलो. डायग्राम है सर, इसमें जो ये पोल से क्यू तक जो डिस्टेंस है ये कितना होगा सर वैसे? पोल टू क्यू बेटा, it is always 90. इट इज 90 राइट सर? Yes, और that's अब right. सर मुझे पी एक्स डैश का भी डिस्टेंस पता है 110 डिग्री सर. नहीं, ऊपर वाला सर एक्स डैश जो डेक्लिनेशन से जा रहा है ना. You want to सर ये say जैसे सेलेस्टियल मेरिडियन पे सर अगर जब होता है तो डेक्लिनेशन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड ना. right, that's right. तो इसमें वो नहीं केस लगेगा सर? वो भी लगा सकते हैं ना You mean to say सर? जैसे मतलब सेकंड बेड में सर कभी ऐसे फॉर्मूले यूज नहीं किए, सब इससे ही करते थे, तो अभी वो नहीं, याद नहीं that's आ okay रहा था बेटा. तुम कहना क्या चाहते हो मुझे एक बार फिर से बताओ. सर. मैं इससे ही जैसे Latitude x dash is मैथमेटिक्स में 90, सॉल्व that's करते okay. हैं मैंने यहाँ 90 लिख दिया बेटा. सर. एक ये अभी बॉडी क्या ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन पे है सर? ये जो दूसरी वाली बॉडी है. At x dash, हाँ जी सर. राइट yes, सर. that's right. That's तो right. सर It is जब on the. बॉडी जस्ट जस्ट सर जब बॉडी सेलेस्टियल मेरिडियन पे होती है तो उसका डेक्लिनेशन 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड होता है. उसका जो डेक्लिनेशन है वो 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड. हाँ जी बेटा ये रिलेशनशिप कहाँ से आया? सर, पढ़ा था सर. मैं सर भेजूंगा सर आपको वो फोटो देख के ना, जब मुझे दिखता है तो मैं आपको फिर से भेजूंगा सर. मतलब ये आप सॉल्व कर लीजिए, देखता हूँ सर अगर आंसर सेम आता है तो. मतलब सर उसमें ऐसा लिखा था
कि 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड विल बी द डेक्लिनेशन. 90 minus true altitude will be the declination. Yes sir. 90 minus, नहीं बेटा, I have not seen this relationship anywhere. 90 minus true altitude would be the zenith distance बेटा, not the declination. 90 सर minus true altitude तो zenith distance होता है. हाँ जी होता है सर जेनिथ डिस्टेंस या, बट वो रिलेशन लिखा था कि जब बॉडीज एट सेलेस्टियल मेरिडियन. तो ठीक है सर, मैं देखता हूँ सर, आप मैं इसे देख लेता हूँ. Okay, send it to me if you find it anywhere because I have not seen it बेटा. ओके सर, ओके. बोलो. सर इस क्वेश्चन में जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने जो ट्राई करने की कोशिश की थी, जैसे PZX जो ये है ट्रायंगल ऊपर वाला अपर नॉर्थ पोल में, इसमें ये वाला एंगल अपना जो ZX है वो अपना 90 हो गया. ये ट्रायंगल की बात कर रहे हो हाँ, आप, और आप हाँ बोल सर, रहे हो ZX ZX 90 हो गया. 90 हो गया, ये वाला एंगल अपने पास 80 हो गया. Very good बेटा, this is right, this angle is 80 degrees, perfect. तो इस ट्रायंगल को नेपियर्स लॉ से सॉल्व करके और अपने पास PQ 90 डिग्री है तो माइनस करके तो भी तो लैट आ सकता है, निकल सकता है बेसिकली. बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे व्हेन वी अप्लाई द नेपियर्स, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं अदर देन द 90 डिग्री पार्ट. तो एक तो ये 80 डिग्री है, व्हाट इज द सेकंड थिंग यू नो? हाँ सर ठीक है, ये सीधे राइट, यहाँ पे आके फंस जाएगी कहानी. अदरवाइज अप टू हियर इज ओके. द PZX ट्रायंगल 90 डिग्री साइड इज फाइन. सर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं क्या? ऐसे हो तो भेज दीजिए ना सर, ये बुक के तो हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन से थोड़े अटकते हैं. बेटा ये मैंने अभी आपको कराए नहीं हैं, दे विल कम आफ्टर वी डू द साइट्स. ये तो आपने डाउट पूछ लिया इसलिए मैंने करा दिया आपको. So I will also give you some questions, but for that just wait. Let's complete the sites first, huh? सर पहले आप इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे ना, मतलब भूल गए हम लोग सेकंड मिनट में तो पढ़े थे तो भूल गए सर. हाँ बेटा करेंगे एक्सप्लेन, बट प्रोसीजर यही है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रैशनल होराइजन डायग्राम में डालते हैं एंड द सॉल्यूशन कम्स आउट ऑफ इट. ओके, सो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है. हमने सारी इंफॉर्मेशन को रैशनल होराइजन में डाला और हमें ये सोल्यूशन मिल गया. सो मैं आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस दूंगा, बट दैट विल बी आफ्टर वी कंप्लीट द साइट्स एंड स्टैगर्ड प्लॉटिंग. ओके सर, एक चीज और बता दी, इसमें ये ZX डैश की वैल्यू 10 डिग्री कैसे हो गई, हम भूल गए सर. ये एम्पलीट्यूड तो हमारा वैल्यू राइट. इस क्वेश्चन में बॉडी का ट्रू ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है बेटा, कितना है? ट्रू ऑल्टीट्यूड 080 दे रखा है सर. वेरी गुड. So true altitude in this diagram is SX dash. Okay sir. If SX dash is 80 degrees, what will be ZX dash? 90 minus 80. Okay. So आ गया बेटा 10. Okay okay. सर एक चीज पूछ रहा था, जैसे लैट बाय मेरिडियन वाली एक्सरसाइज थी, इसमें जब करते थे तो हम दोनों पोल के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाते थे और जो सही होता था दैट वी टेक. You used to make a rational horizon diagram beta? Yes sir, both. Okay, so first of all tell me, shall I close the whiteboard? सर एक मिनट सर. Okay, इसको नोट कर लो बेटा. Let's first complete this. We will close it and then we will go to the next out. Okay sir. Okay, very good. हाँ अब बताओ बेटा. Now tell me. सर जैसे लेट बाय मेरिडियन के क्वेश्चन करते थे तो उसमें जैसे MZD अपने पास जेनिथ डिस्टेंस उससे आ जाता ट्रू अल्टीट्यूड से, और डिक्लिनेशन बुक से निकाल लेते थे. तो इसके बाद दोनों डायग्राम में रखते थे, जो सेटिस्फाई होता था उसको कंसीडर करके हम वैल्यू प्लस या एडिशन माइनस करते थे और वो करते थे. ओके. इसका कोई डायरेक्ट चीज़ है कि मतलब डायरेक्ट में ही हो जाए कि दो डायग्राम नहीं बनाना पड़े, एक में ही मतलब ऐसे हो जाए कि? बेटा मैंने जो मेथड आपको बताया है उसमें तो कोई डायग्राम है ही नहीं.
सर उसमें अजीमत निकालना बताया ना आपने, ओके, ये जो वो डायग्राम मैंने निकाल। बताई आपको एजीमुथ हाँ निकालने वाली, हाँ। आप अगर 2 सवाल करोगे तो तीसरे में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। अच्छा, क्योंकि वो यू गिव अजीमत मी, एक्स्ट्रा हो जाता है लेट बाय होल्ड ऑन, मेरिडियन में। होल्ड ऑन, हाँ। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। यू टेल मी एनी लैटिट्यूड, डीआर लैटिट्यूड, कोई भी एक डीआर लैटिट्यूड बताओ। 12 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ। साउथ। नॉर्थ। 12 डिग्रीज नॉर्थ इज अवर डीआर लैटिट्यूड। अब मुझे कोई भी डेक्लिनेशन बताओ। सर आप जो बोलना चाह रहे हो ना कि होल्ड अपने ऑन, पास होल्ड ऑन, दिया होल्ड दिया ऑन, हुआ होता है। जस्ट गिव मी ए मिनट। हाँ तुम बेटा मुझे पहले 12 डिग्री नॉर्थ तुमने लैटिट्यूड बताया, हाँ। अब मुझे एक डेक्लिनेशन बता दो, कोई भी ऑफ योर चॉइस। सर देन फॉर द एग्जांपल डिक्लिनेशन इज अराउंड मुश्किल वाली बताओ 1 कोई। डिग्री, 1 डिग्री साउथ। 1 डिग्री साउथ। हाँ 12 डिग्री नॉर्थ पे ऑब्जर्वर है, वन हाँ। डिग्री साउथ पे बॉडी है। इज द बॉडी साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर और नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर? नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर। 12 डिग्री नॉर्थ पे ऑब्जर्वर है, द बॉडी इज एट 1 डिग्री साउथ। हाँ साउथ ऑफ द साउथ ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इज सर। ऑब्जर्वर इज एट 12 डिग्रीज नॉर्थ, द सेलेस्टियल बॉडी इज एट 1 डिग्री साउथ। हाँ, तो बेसिकली 13 डिग्री हो गया ना। हाँ, मैं ये पूछ रहा साउथ हूँ कि जो साउथ बॉडी साउथ है ऑब्जर्वर के साउथ में होगी या नॉर्थ में? साउथ में होगी ना वो बॉडी। तो बहुत। साउथ में होगी ना बेटा, हाँ बिना डायग्राम के अजीमुथ आ गया। सर ये तो मतलब ये तो आपने वैल्यू के हिसाब से देख लिया। अब तो मैं एक क्वेश्चन एग्जैक्टली। सर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है बुक का। ऑन ओके, फर्स्ट में डी आर लॉन्गिट्यूड द ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड दिया है, डी आर लॉन्गिट्यूड दिया है, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड दिया है, साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर बता रखा राइट, है ना। अब राइट, इसमें अगर मैं डायग्राम नहीं बनाऊं राइट। बेसिकली, क्योंकि लैट तो अपन को दिया ही नहीं है तो खुद दिक्कत को। आ गई। अब बिना हाँ लैट के कैसे पता चले कि बॉडी साउथ में है नॉर्थ में है? हाँ, वरना तो या तो एज्यूमेट निकालूं मैं इसमें। अब बेटा सुनो, 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 सुनो। तुमने अभी बोला कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉडी इज साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, तो इसमें निकालने की जरूरत क्या है? ठीक है। You said just now na that the हम्म। question says body south. I just listened, you read the question, body is south of the observer. तो इसमें खुद का लैटिट्यूड नहीं दिया तो फिर जेड की वैल्यू कैसे मानेंगे फिर? फॉरगेट अबाउट इट ना, तुम्हें z क्यों चाहिए, तुमने डायग्राम क्यों बनानी है? तुम्हें पता चल गया बॉडी साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर है, हाँ करेक्ट? तुम्हें पता चल गया बॉडी साउथ ऑफ द तो वो तो ऑब्जर्वर है। सर तो जैसे इस चीज में पोल, पोल का जैसे पोल चेंज हो जाते हैं, एक बार तो पोल ऊपर की तरफ रहता है, मतलब जो नॉर्थ साउथ जो उसमें है तो पोल ऊपर रहता है, और कुछ क्वेश्चन में पोल नीचे रहता है, तो वो तो पोल उस किस में हिसाब से। चेंज होते हैं बेटा? हाँ। पोल किस में चेंज हो जाते हैं? रैशनल हॉराइजन डायग्राम में। यस। और मुझे ये बताओ कि तुम रैशनल हॉराइजन क्यों बना रहे हो? अच्छा डायरेक्टिव ऐसे हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट मेथड बताया है। मुझे ये बताओ तुम रैशनल हॉराइजन क्यों बना रहे हो? हाँ, सर सर मैंने ना सर आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा, उससे वो वहां से पढ़ा था, बट उससे भी करता हूँ तो वैल्यू उतनी सेम आ रही है, 20 डिग्री ही आती है। ओके बेटा, डोंट गो बाय द आंसर, लेट मी नहीं चेक द नहीं, हाँ स्क्रीनशॉट। जी सर, आप देख लीजिए, तभी सर मैंने वही पूछा है सर, मैं मतलब आंसर भी नहीं आंसर तो बहुत तरीके से नहीं, आ ऐसे वैसे सकता है। गूगल पे लिखा हुआ है, गूगल पे लिखा था जस्ट अभी, तो अब इसका मतलब कुछ और होगा, मे बी आई एम इंटरप्रेटिंग रॉन्ग। चेतन ग्रुप पे किया या पर्सनल मैसेज किया सर को? ये सर को मैंने पर्सनली करा है, क्योंकि गलत होगा तो सर बता देंगे ना अभी। अरे कोई नहीं, ग्रुप पे भी डाल दो, मैं भी देख। ओके, मुझे ये देखने दो बेटा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। यू हैव जस्ट हाँ सेंड वन पैराग्राफ, लेट मी चेक व्हाट इज रिटन बिफोर एंड आफ्टर दैट पैराग्राफ। जी, आई यस कैन सर। गो टू दिस साइट एंड लेट मी चेक कि ये कहना क्या हाँ चाहते हैं। हाँ जी बिकॉज सर। ए स्टेटमेंट इन itself that when the body is on the observer celestial meridian, its declination will be equal to 90 minus true altitude, it would not be correct. हाँ जी सर, बट मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ,
let me just give me a minute. ट्राई कर लो। I'll हाँ open up जी। the whiteboard. Just give me a minute. Okay, beta. Now look here. You can see the rational horizon diagram. Now मैंने एक observer consider किया. Let us say the observer is at 30 degree north latitude. So this zx will be 30 degrees. The pole would be here. Correct, beta? Now let us say it is the sun which we are observing and the date is 23rd of September. 23rd of September को sun की declination 0 होती है. So that's why I have made the sun on the equinoctial. Correct? The declination of the sun is 0. Now in this case, beta, the altitude of the sun is सर going to डेक्लिनेशन ऑफ द be, सन इज 0 सर। yeah, beta, it is on ये कौन से दिन the होती है सर ये? equinoctial. huh? Ask again, beta. सर इसका भी कुछ स्पेशल कंडीशन होता है ना 0 होने का, डेक्लिनेशन 0 होने का? हाँ बेटा, 2 दिन में होती, 2 दिन आते हैं साल में जब ये 0 होती है, 21st of March एंड 23rd of September. ओके सर। सो हमने सन की डेक्लिनेशन 0 मान ली एंड ठीक सन इज ऑन द इक्विनॉक्शियल राइट नाउ. कुछ भी मान सकते हैं. आई हैव केप्ट इट 0 जस्ट सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हाँ जी। अब बेटा ऐसे केस में आप देखो, जो सन का ट्रू अल्टीट्यूड होगा एट द टाइम ऑफ मरपास, राइट, दैट विल बी 60 डिग्रीज. सर ट्रू ऑल्टीट्यूड सन का 60 डिग्री, सर ये कैसे होगा सर? ओके, एस इज द होराइजन, दैट्स राइट. हाँ जी सर। x is the center of the sun, so सर s बट to ये तो x. उससे भी मैटर करेगा ना कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, लाइक उसका बेटा जेनिथ ऑब्जर्वर, बिल्कुल टॉप पे आएगा तभी वो 90 डिग्री पे जाएगा ना सर उसके। ऑब्जर्वर कहीं भी हो, ये उसका जेनिथ रहा. जेनिथ इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द रैशनल हॉराइजन डायग्राम. हाँ जी सर। ओके, तुम ऐसा करो बेटा, फॉरगेट अबाउट इट. तुम हाँ मुझे, लेट्स इरेज इट. व्हाट यू डू इज यू गिव मी एनी लैटिट्यूड, कोई एक लैटिट्यूड दो मुझे, एनी लैटिट्यूड ऑफ योर 45 चॉइस. डिग्री 45 नॉर्थ। 45 डिग्री नॉर्थ इज द लैटिट्यूड. ये मैंने 45 नॉर्थ लैटिट्यूड के लिए इक्विनॉक्शियल बना दी. ठीक है सर। ओके, ये क्यू पॉइंट आ गया. हाँ जी Z सर। टू Q इज 45, यस सर। राइट. अब मुझे यस सर। बताओ व्हाट विल बी S टू Q. S2Q विल बी 45 सर। विल बी 45 अगेन. अब मुझे बेटा कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी बताओ, यस। डेक्लिनेशन विच वी आर हाँ ऑब्जर्विंग, एनी सेलेस्टियल बॉडी, डेक्लिनेशन एनी डेक्लिनेशन विच वी आर ऑब्जर्विंग सर ऑफ 40 योर चॉइस. 52 डिग्री नॉर्थ सर डेक्लिनेशन। 52 डिग्री नॉर्थ डेक्लिनेशन है. 52 डिग्री नॉर्थ डेक्लिनेशन है. सो 52 नॉर्थ का मतलब है इक्विनॉक्शियल से 45 गए और फिर 7 डिग्रीज और ऊपर जाना 7 है. डिग्री ऊपर गए सर। Right, so this is where the body is. Let me mark the body. So this is 7 degrees and the pole is going to be somewhere here. यस So सर। ये body आ गई हमारी. Right बेटा. यस अब सर। मुझे ये बताओ कि इस केस में डेक्लिनेशन जो है बॉडी की वो तुमने कितनी कंसिडर करी? 52. मैंने 52, यस सर। Right, and body is on the meridian. हाँ जी सर। Right. अब एक चीज मुझे और बताओ कि ये जो बॉडी है, let's name it as x. What will be the true altitude of the body when it is on our meridian at point x? बता सकते हो? सर ये नहीं। ओके, अब मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा. कभी भी आपको ट्रू ऑल्टीट्यूड निकालना हो, किसी भी जगह पे ये रैशनल होराइजन डायग्राम में बॉडी हो, हाँ z पॉइंट को बॉडी के साथ ज्वाइन कर दो एंड एक्सटेंड इट अप टू द होराइजन.
In this case, the ZX line extended meets at N point, north point, correct? Yes, sir. Yes, sir. Now, when you draw a line like this, it is the vertical circle passing from the body. तो And 20 डिग्री ओके horizon से लेके body तक की जो arc है, this is what is true altitude of the body. हाँ जी सर True altitude tells us how much above the horizon the particular body is. N point represents the horizon, X point represents the body. 20 डिग्री हो गया सर इस केस में ना हाँ, अगर ZX 7 डिग्रीज है तो इस केस में ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 83 डिग्री। 20 हाँ ZX 7 डिग्री है तो ट्रू ऑल्टीट्यूड 83 हाँ जी ठीक है 83 होगा। सो हाँ जी सर डेक्लिनेशन आ गई 52, ट्रू ऑल्टीट्यूड आ गया बॉडी का 83 डिग्रीज। करेक्ट बेटा? यस सर अब तुमने जो मैसेज मुझे भेजा है उसमें ये चीजें फिट करके देखो, डज इट होल्ड सर करेक्ट? उसमें उसमें लिखा था डेक्लिनेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड सो 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड अगर करेंगे तो 90 माइनस 83 ये तो आता है 7 और हाँ जी डेक्लिनेशन है 52, तो ये तो हाँ गड़बड़ हो गई ना बेटा। डेक्लिनेशन 7 डिग्री आया विद रिस्पेक्ट ओके सर सो अब तुम उस वेबसाइट पे जाओ और उनको बोलो कि ये गलत है जो आपने लिखा है, दिस इज रॉन्ग, इसको करेक्ट करो। सर वो कोई और थ्योरी कर देंगे सर मुझे कौन सा बल्ले पड़ेगी करने दो ना, वो थ्योरी मुझे भेजना फिर, वो ठीक है थ्योरी सर कोई वो थ्योरी एनालिटिकल डाटा भेज देंगे सर मेरे को इस रिसर्च करा हुआ मैं क्या करूंगा उसमें डोंट वरी बेटा, वो थोड़ी ओरल लेने आएंगे तुम्हारा। नहीं नहीं सो सर सर वैसे बहुत अच्छा है सर ऐसे अब किसी को चैलेंज करना ना डिग्री तो मिल बेटा जाती यू है आर मेकिंग इट मोर बेटर, यू आर मेकिंग इट मोर बेटर, पर मैंने अभी पूरा नहीं देखा है, हो सकता है दे मे बी मैं भी गलत हो से सकता है आपको आप देख लेना हाँ जी अगर some आप टाइम different context, but in itself the statement is not right. ओके सर ओके Okay, so we are almost done for this session. अब बेटा एक सेशन है हमारा आफ्टरनून में। अब आफ्टरनून के सेशन में would you like to practice these questions or you want me to proceed to intercept? प्रैक्टिस Okay, all right. So we will connect as usual. We will connect in the class. Connect करेंगे and you will practice. Maybe I'll give you a couple of questions here. You can keep on practicing, and that will be for the afternoon session. And next session will we meet after the today's one. Then we will continue with our remaining methods, intercept and X meridian. Okay. ओके सर Okay, beta. So let's break off for lunch then.